Hello students of class 11th, myself Suthekshan Kumar Pandey. I want to teach you the second lesson of Hornbill prose. We are not afraid to die if we can all be together. I I have taught you the portrait of a lady written by Sukhwant Singh and a poem, a photograph composed by Shirley Tolson. Shirley Tolson was a poetess who had composed a photograph. I have taught you one prose and one poetry, and the second prose lesson is "We are not afraid to die if we can all be together," written by Gordon Cook and Ellen East. Before reading it, I want to tell you that for due to COVID-19, your syllabus is reduced, not removed but reduced for the year. In your Hornbill book prose, there are eight lesson and 8 lesson prose and 1 2 3 4 5 and 5 poetry, but 3 lessons of prose reduced. One, the Brownie version Terence Rattigan का है, and the Adventure written by Jayant Narlikar, and the third, Silk Road, written by Nick Middleton. 3 lessons reduced, and 1 poetry and 1 poem, Father on Son, composed by Elizabeth Jennings, reduced. Next है snapshots, means जिसको आप you can say it supplementary reader. In your supplementary reader there are 8 lessons, but 3 lessons are reduced by the UP board. What reduced? The Ghat of the only word Amitabh Ghosh. ये अमिताभ घोष का है. बर्थ AJ क्रॉनिंग का है. द टेल ऑफ मेलॉन सिटी, ये है विक्रम सेठ का. ये तीनों जो आप देख रहे हो 3 lessons आर रिड्यूस्ड इन योर स्नैपशॉट बुक सप्लीमेंट्री रीडर. You will have to read and write. You will have to understand. You will have to learn only 5 years of your book snapshot supplementary reader. And writing skill, note making, summarizing, subtitling, and subtitling के बाद क्या है, essay writing, letter writing, creative writing, notice, poster, advertisement. ये जो है राइटिंग स्किल के अंदर है, और ये जो है रीडिंग स्किल्स के अंदर आप अपने अंतर्गत आपने देखा. तो ये सब आपका कंटेंट है जो रिड्यूस किया गया है. वो हॉर्नबिल यानी प्रोज में आपके वो है 3 लेसन्स पोएट्री, 3 लेसन पोएट्री का 1 2 and 3, and 1 lesson of poetry in your Hornbill, Father to Son, composed by Elizabeth Jennings. Understand? Let us read the second lesson of your prose called Hornbill. What is this? The name is We are not afraid to die if we can all be together. What
व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द लेसन? सेकेंड लेसन है ये, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, written by Gordon Cook and Alan East. There are two writers of the lesson. You have to understand about the author. Gordon something. There are very brief introduction about the author. गॉर्डन कुक इज अ कैनेडियन ओलंपिक सेलर। गॉर्डन कुक जो हैं वो एक कैनेडियन ओलंपिक सेलर हैं, कनाडा के एक ओलंपिक के नाविक हैं, कैनेडियन ओलंपिक नाविक हैं जो अभी भी जिंदा है। ही वॉज बॉर्न ऑन 3 दिसंबर, वह 3 दिसंबर को पैदा हुए थे। कब? 1978 ईस्वी में, एट टोरंटो इन कनाडा, कनाडा के टोरंटो में 1978 ईस्वी में 3 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था, गॉर्डन कुक का। ही वुड सेल फॉर द रॉयल कैनेडियन याच क्लब। ही वुड सेल, वह सेल मतलब होता नाव चलाना, वह नाव चलाया करते थे, अर्थात वह नाविक का कार्य किया करते थे फॉर द रॉयल कैनेडियन याच क्लब, रॉयल कैनेडियन याच क्लब के लिए। याच का मतलब होता है नाव। रॉयल कैनेडियन नाव का जो एक क्लब था, उस क्लब के लिए वह नाव किया करते थे, नाव चलाया करते थे। तो यू हैव अंडरस्टूड, यू हैव नोन समथिंग अबाउट गॉर्डन कुक। एंड सेकेंड इज एलन ईस्ट। एलन ईस्ट वॉज लीगल ट्रेनर। ये एक लीगल ट्रेनर थे, ट्रेनर मतलब प्रशिक्षक थे। एलन ईस्ट वॉज लीगल ट्रेनर, यह एक लीगल ट्रेनर थे, प्रशिक्षक थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 18 नवंबर 1923 एट ईस्ट डेरी इन न्यू हैम्पशायर। ही वॉज बॉर्न, वह पैदा हुए थे ऑन 18 नवंबर को 1923 ईस्वी में एट ईस्ट डेरी में, यानी ईस्ट डेरी नामक स्थान पर, इन न्यू हैम्पशायर जो वहाँ का स्टेट है, उस न्यू हैम्पशायर के ईस्ट डेरी में 18 नवंबर 1923 ईस्वी को पैदा हुए थे। कौन? एलन ईस्ट। ऑब्वियसली वॉच का प्रयोग किया गया है। इट मीन्स दैट ही इज डेड नाउ। ही फाउंडेड, उन्होंने स्थापना किया था, उन्होंने स्थापना किया था क्या? अ मल्टी एकेडमी ट्रस्ट की स्थापना उन्होंने की थी। सेंट्रल एकेडमीज ट्रस्ट, उन्होंने मल्टी एकेडमी ट्रस्ट, सेंट्रल एकेडमी ट्रस्ट की स्थापना की थी। यानी उन्होंने जो है इन दोनों जो ये ट्रस्ट हैं, इन ट्रस्टों की उन्होंने जो न्यास है, ट्रस्ट मीन्स होता न्यास, उन्होंने इन दोनों न्यासों का क्या किया था? फाउंडेशन किया था, स्थापना किया था। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट गॉर्डन कुक इज अ कैनेडियन एंड ही इज अलाइव नाउ, एंड एलन ईस्ट वाज इंग्लैंडियन। आयन कह दीजिए कि वो ये जो है इंग्लैंड के थे, और इस प्रकार ही इज़ डेड नाउ, ही इज़ नॉट अलाइव नाउ। अबाउट द लेसन, यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द लेसन। लेट अस रीड। अ बिजनेसमैन हु वाज 23 years old, एक व्यापारी जो 37 साल का था, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, इन दोनों ने हैड ड्रीम, इन दोनों के पास एक स्वप्न था, इन दोनों ने एक स्वप्न देखा था। दे वांटेड, कौन सा स्वप्न था? दे वांटेड, वो चाहते थे, टू अंडरटेक, बीड़ा उठाना। अंडरटेक का मतलब होता है वचनबद्ध होना, बीड़ा उठाना, सुपारी लेना जिसको बोलते हैं। तो एक्चुअली ये सुपारी लेना थोड़ा विभत्स रूप में कह दीजिए, लेकिन अंडरटेक का मतलब होता है बीड़ा लेना। तो दे वांटेड टू अंडरटेक, उन्होंने वे बीड़ा उठाना चाहते थे। द सेम वोएज, उसी समान यात्रा, समुद्री यात्रा के लिए, उसी सेम वोएज यानी उसी समुद्री यात्रा के लिए,
राउंड द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार का चक्कर लगाने वाले उसी समुद्री दौरे के लिए, समुद्री यात्रा के लिए जैसा कि द एक्सप्लोरर, जैसा कि एक्सप्लोरर यानी खोजकर्ता कैप्टन जेम्स कुक, जैसा कि वह खोजकर्ता कैप्टन जेम्स कुक ने 2000 साल पहले अंडरटुक माने बीड़ा उठाया था। यानी 200 वर्ष पूर्व जिस संसार की चक्कर लगाने वाली यात्रा के लिए खोजकर्ता कैप्टन यानी कप्तान जेम्स कुक ने अंडरटुक किया था, बीड़ा उठाया था, यानी उन्होंने यात्रा की थी पूरे संसार का, उसी द सेम वॉयज, उसी समान यात्रा को यानी संसार के उसी यात्रा को करने के लिए उन दोनों ने यानी गॉर्डन कुक और उनकी पत्नी, इन दोनों ने ही क्या किया, इन दोनों ने ही ये दोनों ही बीड़ा उठाना चाहते थे। फिर क्या होता है इन दिस लेसन, इस लेसन में यानी इस अध्याय में, लेट अस रीड, हम पढ़ें हाउ अ माइटी वेव, हाउ कि कैसे एक माइटी वेव ने, एक शक्तिशाली तूफान ने ब्रोक ओवर देम, उनके ऊपर तोड़ फोड़ की, अर्थात उनके ऊपर प्रहार किया, एंड डैमेज द शिप, और शिप को डैमेज कर दिया, नष्ट कर दिया। लेट अस रीड, आओ हम पढ़ें हाउ अ माइटी वेव कि एक ऐसे तूफान ने, एक ऐसे शक्तिशाली तरंग ने क्या किया, ब्रोक आउट देम, जो उनके ऊपर टूट पड़ा, एंड डैमेज्ड, ब्रोक ओवर देम, जो उनके ऊपर टूट पड़ा, एंड डैमेज्ड द शिप, और पूरे शिप को खंडित कर दिया, डैमेज कर दिया। बट दे स्ट्रगल्ड, बट किंतु उन्होंने स्ट्रगल्ड, संघर्ष, किंतु वे संघर्ष, ऑन का प्रयोग किया कॉन्टिन्यूअस सेंस में, किंतु वे संघर्ष करते रहे, एंड वर सेव्ड, और उन्होंने अपनी सुरक्षा की, अर्थात और वे सुरक्षित बच गए। इस प्रकार ये एक समुद्री यात्रा पर लिखा गया वास्तविक घटना का जो है कि एक पेनग्राफिक्स है, जिसे गॉर्डन कुक एंड एलेनिस्ट ने लिखा है। इसीलिए उन्होंने इसका नाम दिया है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम साथ साथ रह सकते हैं, यानी यदि हम साथ साथ रह सकते हैं, एकजुटता के साथ रह सकते हैं, तो हम मरने से नहीं डरते हैं, अर्थात तो हमें मरने से नहीं डरना चाहिए। ये उसका जो है एडवाइस होगा। तो हम आते हैं सीधे पॉइंट पर आते हैं, क्या है, सीधे टेक्स्ट पर आते हैं। कम टू द पॉइंट। इन जुलाई 1978, जुलाई 1976 ईस्वी में माई वाइफ मैरी, अब ये उन्होंने जो है उस यात्रा के संदर्भ में गॉर्डन कुक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जुलाई 1976 ईस्वी में माई वाइफ मैरी, मेरी वाइफ मैरी, उनकी पत्नी का नाम मैरी था, सन जॉनसन जो 6 वर्ष का था, 6 वर्ष का पुत्र जिसका नाम जॉनसन था, और 7 वर्ष की पुत्री जिसका नाम सुजैन था, डॉटर सुजैन 7, यानी जो 7 वर्ष की थी मेरी डॉटर सुजैन, है ना। इन सभी के साथ आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, आई माने हमने क्या किया, आई सेट सेल, हमने, सेल का मतलब होता है समुद्री यात्रा करना, हम समुद्री यात्रा पर निकल पड़े, फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से, मैं इन सभी के साथ इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से यात्रा पर निकल पड़े। टू डुप्लीकेट का मतलब होता है दोहराना, यानी रिपीटिंग। टू डुप्लीकेट माने दोहराने के लिए, यानी डुप्लीकेट यात्रा के लिए, यानी प्राथमिक यात्रा नहीं है बल्कि दूसरी यात्रा है, इसलिए क्योंकि इसके पहले यात्रा कर चुके थे। कौन कर चुके थे? कैप्टन जेम्स कुक। अब यहाँ पर कौन? गॉर्डन कुक कह रहे हैं कि टू डुप्लीकेट का मतलब होता है दोहराने के लिए, अर्थात यात्रा के संदर्भ में है ही, तो टू डुप्लीकेट दोहराने के लिए। द राउंड वर्ल्ड वोयज, पूरे पृथ्वी
पूरे पृथ्वी के का चक्कर लगाने वाली वोयेज माने समुद्री यात्रा। पूरी पूरी पृथ्वी का के राउंड पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने वाली वोयेज माने समुद्री यात्रा को टू डुप्लीकेट माने दोहराने के लिए, जिसे मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाई कैप्टन जेम्स कुक, जिसे 200 वर्ष अर्लियर पूर्व जिसे 200 वर्ष पूर्व कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा मेड बनाया गया था, किया गया था। यानी जिस यात्रा को 200 वर्ष अर्लियर यानी 200 वर्ष पूर्व कप्तान जेम्स कुक के द्वारा किया गया था, उसी वर्ल्ड राउंड अर्थात संसार का चक्कर लगाने वाली उसी समुद्री यात्रा को डुप्लीकेट दोहराने के लिए मैं अपनी पत्नी मैरी और अपने पुत्र जिसका नाम है जोनाथन जो 6 वर्ष का है, डॉटर सुजैन जो 7 यानी पुत्री सुजैन जो 7 वर्ष की है, इन सभी के साथ मैं जुलाई में 1976 ईस्वी के यानी 1976 ईस्वी की जुलाई में हमने यात्रा को आरंभ किया। नेक्स्ट सेंटेंस है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बहुत समय से यानी बहुत लंबे समय से मैरी और मैं यानी मैरी और मैं जो बहुत लंबे समय से आ 73 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन मैरी और मैं जो 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन जो 37 साल का एक व्यापारी था, हैड ड्रीम स्वप्न देखा था। यानी बहुत लंबे समय से मैरी यानी मेरी पत्नी मैरी और मैं जो 37 वर्ष का एक बिजनेसमैन यानी व्यापारी हूँ, सभी हम दोनों ने क्या किया था, हैड ड्रीम्ड स्वप्न देखा था ऑफ सेलिंग माने समुद्री यात्रा का, इन द वेव ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर इन द वेक ऑफ द famous explorer and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in British water। तो देख रहे हैं कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बहुत लंबे समय से मैरी यानी मेरी पत्नी मैरी एंड आई और 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन और एक 37 वर्ष का एक बिजनेसमैन यानी व्यापारी अर्थात मैं, हम दोनों ने ही हैड ड्रीम्ड स्वप्न देखा था, हम दोनों ने ही सेलिंग इन द वेक माने अनुसरण करने में, इन द वेक माने अनुसरण करने के लिए यानी उसी के समान किसका अनुसरण करने के लिए, आप द फेमस एक्सप्लोरर, द माने उस फेमस माने प्रसिद्ध एक्सप्लोरर माने खोजकर्ता, आप माने के उस प्रसिद्ध खोजकर्ता का अनुसरण करने के लिए समुद्री यात्रा करने का क्या देखा था, हैड ड्रीम्ड माने स्वप्न देखा था। अब यहाँ पर अर्थ ये हो गया कि बहुत लंबे समय से मैं जो 37 साल का एक व्यापारी था और मेरी पत्नी दोनों ने ही हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग, दोनों ने ही समुद्री यात्रा करने का स्वप्न देखा था इन वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, उस प्रसिद्ध खोजकर्ता के अनुसरण में, यानी उस प्रसिद्ध खोजकर्ता का अनुसरण करने के लिए समुद्री यात्रा का हम दोनों ने ही स्वप्न देखा था। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स और पिछले 16 वर्षों से और पिछले 16 वर्षों तक वी हैड स्पेंट हमने बिताया था, वी हैड स्पेंड माने खर्च करना अर्थात समय को खर्च करना यहाँ पर आया है बिताना। तो क्या, एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स और पिछले 16 वर्षों तक वी हैड स्पेंट हमने बिताया था ऑल आवर लेजर टाइम अपने रिक्त समय को, अपने खाली समय को, अपने आराम वाले समय को हॉन माने तेज करना, तीक्ष्ण करने के लिए,
क्या होनिंग तीक्ष्ण करने के लिए, क्या तीक्ष्ण करने के लिए, आवर माने अपने, सी फेरिंग, सी माने समुद्र, सी फेरिंग का मतलब होता है समुद्रगामी, स्किल माने कौशल, अपने समुद्रगामी कौशल को अधिक तेज बनाने के लिए, तीक्ष्ण बनाने के लिए इन ब्रिटिश वाटर्स, ब्रिटेन के समुद्र में, वाटर्स का मतलब होता है समुद्र, ब्रिटेन के समुद्र में अपने समुद्रगामी स्किल को, समुद्रगामी कौशल को हॉनिंग तीक्ष्ण बनाने के लिए हमने 16 वर्षों, पिछले 16 वर्षों तक, पिछले 16 वर्षों से भी हमने हैड स्पेंट ऑल आवर लीजर टाइम, अपने खाली समय को, अपने लेज़र टाइम को, यानी अपने रिक्त समय को, अपने आरामदायक समय को हैड स्पेंट मैंने व्यतीत किया था। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। वी आर नॉट अफ्रेड टू ट्राई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, written by Gordon Cook and Alan East. Thank you.